हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस में। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था द टेस्टिस रिलीज द sperm and the ova released by the ovary. Today I have a question. What happens when the eggs not fertilize? In the previous class I have already talked you the uterus prepared itself so that it receives the fertilized egg. The fertilized egg divided itself into the embryo, and that embryo embedded into the thick lining of uterus, and that stage is called pregnancy. But what happens when the eggs are not fertilized? What happens? What happens when the eggs are not fertilized? कहता है कि यदि एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है? द यूटेरस नो लॉन्गर नीड, ठीक है, यूटेरस जो है नो लॉन्गर नीड टू फॉर द थिक लाइनिंग। यूटेरस जो होता है वह लंबे समय के लिए नहीं होता है, ठीक है। द थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ठीक है। इन द केस ऑफ अनफर्टिलाइज्ड unfertilization of egg, the thick lining of uterus no longer required, तब क्या होता है? The thick lining of uterus begins to break down, and come out through vagina. जब कोई एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस स्थिति में यूटेरस की जो थिक लाइनिंग है उसके लंबे समय तक कोई आवश्यकता नहीं होती है और वह ब्रेक डाउन करके, है ना, वेजाइना के जरिए बाहर निकल जाता है, ठीक है। नाउ दिस इज द केस इज कॉल्ड menstruation. The thick lining of uterus is also contain a number of blood vessels, है ना। menstruation
the process of coming out of blood with broken tissue the coming out of the blood with the broken tissue through vagina is called menstruation. Yeah, the flow of the blood with the broken tissue through vagina is called menstruation, or the flow of blood with broken tissue through vagina is called menstruation. इसे क्या कहते हैं? menstruation. क्योंकि यहाँ भी जो यूटेरस भी begins to break down, it contains the blood vessels, और जब वह टूटता है तो ब्लड उस टिश्यू के साथ जो है बाहर निकलते हैं, इसी को जो है हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं. Menstruation starts in a mature girl, that is at the age of around 12 years. The first time the menstruation occurs in the girls is called menarche. Menarche. The first time menstruation occurs in girl at age around 12 years is called menarche. इसे क्या कहते हैं? menarche कहते हैं. क्लियर? दूसरा वर्ड है मेनोपाज. इसे कहते हैं मेनोपाज. मेनोपाज. The menstruation in women carried up to age around 45 to 50 years. और the menstruation in women stopped at the age around 45 to 50 years is called menopause. गर्ल्स में यह मेंस्ट्रुएशन जो है शुरुआत होती है कहाँ से? 12 वर्ष की उम्र के आसपास से शुरू होती है.
मेन से, और महिलाओं में यह लगभग 45 से 50 वर्ष तक चलता रहता है, उसके बाद यह रुक जाता है। इस स्थिति को हम मेनोपॉज कहते हैं, है ना। दी menstruation occurs once in a month. Once in a month, merely, that is it. Repeated after 28 to 30 days. 28 to 30, repeated after every 28 days to 30 days. मेंस्ट्रुएशन जो है अकर्स वंस इन ए मंथ, महीने में एक बार होता है, अर्थात इट रिपीटेड, है ना। यह जो है हर 28 दिन से 30 दिन के बाद, प्रत्येक 28 से 30 दिन के बाद यह जो है रिपीट होता है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना, मेंस्ट्रुएशन पीरियड। मेंस्ट्रुएशन पीरियड, इसे हम मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी कहते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी कहते हैं। क्लियर? नाउ वी कम ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स chromosomes. Every human being contains the 23 pairs of the chromosomes. जितने मानव हैं सबके जो है ना, न्यूक्लियस सेल्स के न्यूक्लियस में 23 पेयर जो है ना। ह्यूमन बीइंग contains 23 pairs of chromosomes in the nucleus of cells, out of which one pair of chromosomes are called sex chromosomes. ठीक है। इसे हम उनमें से एक पेयर जो होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम्स आर ऑफ द टू टाइप्स। सेक्स क्रोमोसोम्स are of two types named X chromosome and Y chromosome. Y chromosomes. Clear?
Male gamete contains half of X chromosome and half and other half Y chromosomes. That means the male gametes can contain only one type of the chromosomes, that is 23 chromosomes. Out of the half are the X chromosome and other half Y chromosomes. In a female contains only X chromosome. ठीक है, फीमेल में केवल जो है एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है, जबकि मेल में एक्स और वाई क्रोमोजोम्स दोनों पाए जाते हैं. दैट मीन्स दे कंटेन द 23 सिंगल पेयर्स, 23 singles chromosome, out of which half of the X chromosome and other half the Y chromosomes. A female contains only the X chromosomes. Is it clear? Determination of sex. Determination of sex of baby. हम कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी सेक्स के बेबी का? तो वी नो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन when X chromosome of the male fertilize with the Y chromosomes of the female, when X chromosomes of the male fertilize with the X chromosome of female, the baby will be a female. When X chromosome fertilize with X chromosome of male. When X chromosome of male fertilize with the X chromosome of female, that is XX fertilization, XX fertilization takes place. The baby will be a girl. क्या होगी? यदि X क्रोमोजोम मेल का और Y क्रोमोजोम फीमेल का फर्टिलाइज होता है, तो वैसी स्थिति में जो बेबी जन्म लेगी वह क्या होगी? एक गर्ल होगी. When X chromosome Y chromosome of male fertilize with
एक्स क्रोमोसोम of female that is XY fertilization takes place. The baby will be a male child. ठीक है, यानी कहने का अर्थ कि जब मेल का जो वाई क्रोमोसोम फीमेल का एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज करता है तो जो बेबी जन्म लेती है, यानी जो बेबी ए मेल चाइल्ड, वह क्या होगा? मेल होगा। यानी मेल में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल में ओनली वन तरह के, एक ही तरह के। तो इसका अर्थ है कि ए फीमेल गिव द बर्थ ऑफ ए मेल और फीमेल ए डिपेंड only on the chromosome of the male. A female give the birth of a girl child or a male child or a male child। यदि एक महिला एक लड़की को जन्म देती है या एक मेल चाइल्ड को जन्म देती है, इट इज ओनली डिपेंड ऑन द क्रोमोसोम ऑफ मेल गैमेट। यह जो है केवल मेल गैमेट्स पर निर्भर करता है कि एक महिला फीमेल को जन्म देगी, एक गर्ल को जन्म देगी या मेल को जन्म देगी। जबकि हमारे यहाँ जो है समाज में एक मिथ्या व्याप्त है कि कोई महिला केवल लड़की को ही जन्म देती है, लड़के को जन्म नहीं देती है, जबकि इसका सारा दोष मेल पर होता है। चूंकि मेल में दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम और मेल क्रोमोसोम। दैट मीन्स इफ ए वोमन गिव द बर्थ ऑफ ए गर्ल, इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दैट मीन्स a woman is not responsible to give the birth of a female child और मेल चाइल्ड। यानी कोई महिला यदि एक फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड जन्म देती है, उसके लिए उत्तरदायी नहीं होती है, उत्तरदायी उसके लिए मेल होता है, क्योंकि मेल में ही दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी यदि देखें एक्स क्रोमोसोम मेल में होता है एक्स एंड वाई, और फीमेल में ये हो गया मेल,
और ये हो गया फीमेल। ठीक है, तो फीमेल में एक्स और एक्स पाया जाता है। जब एक्स का कॉम्बिनेशन इससे होता है तो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, तो यह जो है मेल चाइल्ड जन्म लेता है। और जब एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन होता है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, तब यह जो है ना फीमेल चाइल्ड जन्म। ये सारी चीजें निर्भर करती हैं मेल के ऊपर, क्योंकि मेल में जो है यह जो है वाई क्रोमोसोम पाया जाता है और एक्स क्रोमोसोम, जबकि फीमेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो जब एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होता है तो मेल, और एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन होता है तो फीमेल। तो इस तरह देखें तो एक लड़का होगा या लड़की जन्म लेगी, इसका उत्तरदायी केवल पुरुष होता है, महिला नहीं। अब आते हैं, व्हाट डू मीन बाय द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Reproductive health. Reproductive health is defined as a state of the physical, mental, and social well-being of a person, which reproductive system at all stage of the life. हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, reproductive health. Reproductive health. The state of the physical, mental, and social well-being of a person capable reproductively at all stage of the life. At all stage of the life, the state of physical, mental, and social well-being. Social well-being. Social well-being of a person, that reproductively fit at all stage of life is called reproductive health. इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ some condition are needed to maintain the reproductive health during the adolescence. Conditions required to maintain the reproductive health during the adolescence. During the adolescence.
पहला क्या है? टू टेक द बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट ड्यूरिंग द एडोलसेंस। क्या पहला क्या है? टू टेक द बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का अर्थ क्या है? We take all the nutrients in appropriate amount. Just like we need the cereals. Cereals हमें कार्बोहाइड्रेट देता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। फैट्स, दूध दही लेने की जरूरत है जिससे हमको फैट्स मिलता है, फैट्स से एनर्जी होती है। फल, फ्रूट, green vegetables are needed which gives us the mineral and vitamins। तो इसके लिए जो बैलेंस डाइट में क्या है? डाइट हमारा ऐसा होना चाहिए जो संतुलित हो, जिसमें सीरियल भी हो, है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिले, फैट्स मिले, मिनरल्स मिले, विटामिन्स मिले, ये सभी चीजें हमारी होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए? टू मेंटेन द फिजिकल हाइजीन, टू मेंटेन द फिजिकल हाइजीन, फिजिकल हाइजीन। फिजिकल हाइजीन से क्या है? साफ सुथरा रहे, क्लीन रहे एकदम। अपने आसपास जहां हम रहते हैं वहां की चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि चारों तरफ गंदगी, कूड़े करकट भरे हुए हैं, उसमें हम रहते हो। साफ कपड़े नहीं पहनते हो, रोज स्नान नहीं करते हो, तो दिस इज नीडेड। अब यदि फिजिकली हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमें साफ सुथरे एक इन्वायरमेंट में अपने इर्द गिर्द साफ सुथरा रखना होगा, अपने शरीर को साफ सुथरा रखना होगा, साफ सुथरे कपड़े पहनने होंगे। तो दिस इज नोन एज द फिजिकल हाइजीन। थर्ड है एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज, टू एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज, यानी हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज जो भी हो, जिसे सुबह उठ के थोड़ी देर जॉगिंग कर लिए, टहल लिए, फिजिकल एक्सरसाइज कर लिए, तो थोड़ी सी हमारे अंदर जो है एक्सरसाइज होनी चाहिए एवरी डे, नॉट फॉर वन डे। एवरी डे हमें कुछ न कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। और फोर्थ है अवॉइड द ड्रग्स। ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त ऐसी और भी चीजें हैं, जैसे हम कहीं इंजेक्शन लेने जा रहे हैं, तो एक ही नीडल से बार बार एक इन्फेक्टेड व्यक्ति को जो नीडल लगाएगा उसी नीडल से किसी दूसरे को इंजेक्शन दी जाए तो इन्फेक्शन फैल सकता है। देयर आर सो मेनी। तो हमें जो है ड्रग्स से जो है क्या होना चाहिए, ड्रग्स से दूर होना चाहिए। ठीक है। तो ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। These are the reproductive health. Some condition are needed to maintain during the adolescence. Adolescence के दौरान इसको जो है मेंटेन करना चाहिए। तो इस चैप्टर में अब जो है टॉपिक्स हैं यहाँ खत्म होते हैं। अब हम लोग एक आगे जो है नए टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है। नया टॉपिक्स नए चैप्टर में है फोर्स एंड द प्रेशर। ठीक है। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल
talk on the force and the pressure.